Good morning, students. So, in the previous class, we had discussed regarding poetic devices, regarding simile, regarding metaphor. Because today I had planned to start a new poem, the first poem of yours, of course. Okay, that is "Stopping by Woods on a Snowy Evening," which is written by Robert Frost. Okay, the poet of this poem is Robert Frost, and the poem is a very lengthy poem, right? It's a very lengthy poem. Stopping by woods on a snowy evening. Students, the poem is not lengthy. The title of the poem is lengthy. Okay, the poem is not lengthy. It's a very interesting poem. You are going to enjoy the poem, of course, I can say you all. So, what is the meaning of stopping? Stopping na mane kona? Stop hijiba, atki jiba, rocky jiba, okay. By woods, by is a preposition. Woods on a snowy evening. Pile mane woods kahile katham mein. Wood kahile katha, okay. Wood kahile katha. Woods kahile, it's a forest, you can say, where we can't find any kind of wild animals. Okay, try to understand what I am saying. Woods kahile pile mane katha nume. Wood kahile katha. Eti s gote add heji na. Woods kahile pile mane tara meaning kona asuchi. It's a forest or it's a jungle, you can say, where we can't find any kind of wild animals. जो कि आम कौन प्रकार वाइल्ड एनिमल्स पाती ना जो फॉरेस्ट है जनरली कॉल्ड इट एज अ वुड्स. ओके, वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. पिले माने स्नोई कहले स्नोफॉल होतबो. ओके, एंड इवनिंग कहले पिले माने संध्या. तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस चैप्टर. द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज सो इंटरेस्टिंग. तो पिले माने गोटे जंगल रे, ओके, गोटे जंगल रे स्नोई इवनिंग संध्या बड़ा समय रे कौन होची पिले माने स्नोफॉल होची. दैट भी गोटे जंगल रे एंड हमर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम पोएट से अटकी कि से सीन टा को एंजॉय करछथि. आउ रे होची पिले माने संध्या टाइम हेची, स्नोफॉल होची, वुड्स रे बा जंगल रे इतनी सुंदर दृश्य देखि पिले माने इतनी सुंदर से सीनिक ब्यूटी टा को एंजॉय करिया पे, नेचर सौंदर्य टा को एंजॉय करिया पे पिले माने की अटकी हेची स्टॉप ही हेची ना की अटकी हेची Robert Frost. So this is the poem all about. It's a very interesting poem. You are going to enjoy, in fact. Okay. The students, I am just going to say you the summary of this poem. Kaun bahayani chahe Robert Frost. Robert Frost is a poet who is a kind of person who loves the nature. Okay. अगर आपने भी previous poems जो मैंने पढ़ी थी वो regarding से गोटे path विषय रे गोटे poem देते कि को रास्ता रे गले भलो, को रास्ता रे गले खराब. So he generally writes poem related to the nature. Nature संगे human life को compare करेगी. He generally writes all of his poems. Okay. यही सब poems से मैं लिखवा थी. So that is a different thing. We will be now coming back to our Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is written by Robert Frost. And in this poem, particularly in this poem, the poet is trying to focus on the beauty of the nature, on the scenic beauty that he had enjoyed that day. In the evening, okay, while he was going across the woods मौजे से जाऊँगी, woods cross करके जाऊँगी, he had stopped there. The reason is that the scenic beauty was so beautiful. इतने सुंदर थला पिले माने से सीनरी टा इतने सुंदर थला पिले माने पर्टिकुलरली से टाइप ऑफ सौंदर्यटा हमर पोएट से अटकी कि से सीन को एंजॉय करछथि. ओके, सो आई विल जस्ट से इन द समरी ऑफ दिस पोएम. तो कोन हेछि पिले माने से रास्ता रे जाउछथि, कहां से जाउछथि, एकुटिया जाउछथि? नो, he is traveling with his paid horse. ताकर गोटे पेड हॉर्स माने घोड़ा जोटा हम कहली पोसा घोड़ा बा पेड हॉर्स गोटे थिला. ताहारी ऊपर बसिकी से राइड करके से पूरा एंजॉय करछथि तुमरा से वुड्स क्रॉस करके जाउछथि. ओके, तो कोन हेछि पिले माने से टाइम रे से देखो पिले माने आखिरे एक दृश्यटा पड़े स्नोफॉल होछि, वुड्स और संध्या दिन, तो इट्स संध्या टाइम. तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी एट दैट टाइम. तो से किया है कि कहउछथि कि कहउछथि पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहउछथि कि एई जहार वुड्स और जहार फॉरेस्ट बोधे मुता को चिन्हि छी कौन पाइना ये पाखरे गोटे गाँटे अच्छी को पाखरे पिले माने से वुड्स रो पाखरे गोटे गाँटे अच्छी. एंड डेफिनेटली हमर ए जो वुड्स रो ओनर कहले पिले माने जे मालिक से वुड्स रो जंगल रो मालिक जे से गाँ रे ही रहउची. वुड्स पाखरे थिबा गोटे गाँ रे ही से ओनर रहउची. एंड डेफिनेटली मुता को चिन्हि छी, मुता को जानि छी. ओके, मुता को जानि छी.
मालिक एते अनलकी कि से दृश्य को देखि परिबनी, एते सुंदर दृश्य को देखि परिबनी एंड मु केते लकी जे तार बिना प्रेजेंस रे माने तार एब्सेंस रे मु तारी जगह रे ठिया कि सुंदर दृश्य गोटे एन्जॉय करूची। ता माने से कहया पे चाहछथि कि वुड्स रो ओनर जे मु निहाल ताको चिन्हिची वुड्स पाखे थिबा गोटे गां रे तार घर से सेठी ही रहउची, किंतु सी बिल्कुल भी जानि परिबनी कि तार बिना परमिशन रे तार एब्सेंस रे मु तारी वुड्स तारी जगह रे ठिया कि सुंदर दृश्य गोटे एन्जॉय करूची। ओके, तापरे से पिले माने कोन कहया पे चाहछथि कि केते बडे से हॉर्स ताको कहछथि कि रहिबा पई अन ते ठिया हे छथि, तो ताको जो पेट हॉर्स पिले माने ताको टिके अबागिया लागे छै, स्ट्रेंज लागे छै कथा बडा को से कोछि के पाख पाख के ये कोछि हॉर्स कोछि ताको पेट हॉर्स सी कोछि रातो पाखरे तो कोनसी प्रकार रेस्ट हाउस नाही, कोनसी प्रकार फार्म हाउस नाही, एटी तो एटी जो स्नोफॉल हेलानी पाख पाख तो कोनसी शेड भी नाही रहिया पई माने रेस्ट करिया पई रहिया पई तो कोनसी जगह नाही, ताहाले मते मो मास्टर कोन पई कहले रहिया पई पेट हॉर्स रो मास्टर की पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम पोएट, तो सी कोछि मते मो मास्टर कोन पई कहछि कि रहिया पई एटी तो कोनसी प्रकार फार्म हाउस नाही, कोनसी प्रकार रेस्ट रो प्लेस नाही, देन मते काहे कि तू हाई जी रहिया पई। ओके, निहाती मो मास्टर माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ता मास्टर हॉर्स रो मास्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ताहाले मो मास्टर किछ गोटे मिस्टेक करि दैछथि मते एई जगह रहिया पई जेतु से कहिछथि। ओके, तो से केमिति पिले माने एक्सप्रेस करबो कि जणे मते मास्टर को कि तमे किछ भूल करिछ से कथा कहि परिबन को बळे, तो सी कोन करछि ता बेकर गोटे हार्नेस बेल लगाइ छै, घंटी लगाबे पिले माने डॉग कैट समस्त बेकर पे देखि तो गोटे घंटी है हार्नेस बेल गोटे है से ताको पिले माने मूवमेंट करबो चेष्टा करछि, ताको मूवमेंट करके से ता मास्टर की ऑफ कोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पचारि छी कि तमे किछ मिस्टेक कर दै छ मते एति कहिला मते एति रहिया पे कहछ एति स्नोफॉल रो रास्ता स्नोफॉल होची एति माने अंधार रास्ता अंधार हे असलानी इवनिंग टाइम रे पड़ी स्नो पड़ी असलानी स्नोफॉल एति जोरे होची तमे एति काय अटकी छ व्हाई हैव यू स्टॉप हियर एतो कोन से रेस्ट प्लेस ने मते कोन पे कहछ अटकिया पे बोलते तमे किछ भूल करि दै छ। ओके, तो सेही पिले में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोन कहछथि ताको पेट हॉर्स को क्या चिंता करनी चिंता करे कोन अछि, there is nothing to worry about because कौन पे कहछथि कथा कौन पे ना that was the longest evening of the year, longest evening होले पिले माने कोन से ड्यूरेशन ऑफ द इवनिंग was the longest, मतलब तमे जानि दिबो हमर गोटे लंबा माने लॉन्ग नाइट थाए गोटे लॉन्ग डे था लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो यू मस्ट हैव दैट आइडिया कि ताको टाइम में लेवल सेटा लॉन्गेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर थिला से वर्ष सबसे लंबा इवनिंग ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग टाइम वाज द लॉन्गेस्ट दैट ईयर। ओके, से दिनटा पर्टिकुलरली जोना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए पोएम टाको लिखिछथि, सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से सीनिक ब्यूटी टाको एन्जॉय करिछथि। ओके, दैट वाज द लॉन्गेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो तू कन चिंता करू छु इज द लॉन्गेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एंड एमटीवी तू तो गोटे एनिमल डे तू कोन बुझिबू प्रकृतिर सौंदर्य माने कोन तते केवल तो घंटीर आवाज सुबा होछि ये कहा पूछते माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूछे तकरा पेट हॉर्स को अरे तू कोन जाने घंटीर आवाज तते केवल तो घंटीर आवाज सुबा जाउछि, किंतु टिके चेष्टा कर सुनिबा पई से सुंदर पवन जो मळय पवन जाउछि क्रॉस होउछि जेंटल ब्रीज क्रॉस होउछि तार टिके आवाज सुन, जो स्नोफॉल होउछि तार आवाज सुन, तापर देख देख की जागे एते सुंदर हमर गोटे लेक थिला, लेक माने नद पिले माने गोटे लेक थिला सेटा पूरा पिले माने आइस पड़ी पड़ी के पूरा जते लागियो सेटा माने सेटा गोटे आइस रो लेक पानी लेक माने से पानी अछि कि कहबे से लेक रे पिले माने आइस भर्ती पिले माने, तो सेही सौंदर्य को एन्जॉय कर एते सुंदर विंड जाउछि एते सुंदर एयर जाउछि धीरे धीरे स्नोफॉल होउछि सब आवाज से के फील करे चेष्टा कर, तापर ही तो जानि पाइबो जे वो काहे कि एटी रहिया पई तते होछि की कहछि ता पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहछथि तुमरो जो ताको पेट हॉर्स को। ओके, तो से कहछथि कि इत्ते सारा साउंड अछि आका पाखरे डाउनिंग लेक माने स्नोफॉल होछि तार आवाज सुन एते सुंदर विंड जाउछि तार आवाज सुन एते सुंदर सी जो सीनिक ब्यूटी ताको एन्जॉय कर, गोटे लेक थिला पिले गोटे नद थिला सेटा पूरा आइस पड़ी के पूरा भर्ती पिले माने आइस रे, तो से कहछथि से ब्यूटी टा को एन्जॉय कर तू कोन जानि पाइबो बट जस्ट एन एनिमल यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इनसाइड मी ये कहछथि पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहछथि। ओके, तो फाइनली हम ताको पेट हॉर्स कहछि अरे यार तमे से एही रह के एन्जॉय कर दबो
बट आपको कितने दूर ट्रैवल करबार अछि, कितने दूर मते जिबार अछि, कितने माने लंबा रास्ता कवर करबार अछि घर को जिबा पे। तो सेठी पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट दीटा लाइन कहिछथि, केतेटा लाइन पिले माने दीटा लाइन, केते बडे जेते बडे ताको पेट हॉर्स होइछि कि आपको बहुत लंबा रास्ता कवर करबार अछि, हमको तो बहुत लंबा रास्ता कवर करके घर को भी जिबार अछि, इवनिंग ही हैज लैंडेड। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से दीटा जिंस कहिछथि, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ योर पोएम। दीटा लाइन पिले माने सब वाइंड अप करछन ताको पोएम को एटा करकी कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ए दीटा सेंटेंस पिले माने इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम ऑफ दिस, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस ऑफ दिस पोएम। ओके, तो सी पिले माने कोन कहया पे ट्राई करछन थ्रू दिस टू लाइन्स। सी पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अरे तू तो आमो ए रास्ता कथा कहू जो रास्ता रे तू आ घर को रिटर्न करबा माने घोड़ा आ तुमरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटर्न करबे। ओके, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहछथि ए रास्ता को देखि मो जीवन रास्ता संगे कंपेयर करे छी। जीवन रास्ता पिले माने it's been a very long journey we all have to cover in our lives. Almost in the life पिले माने we have a very long distance to cover. ये कहछथि पिले माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहछथि we have a very long distance to cover. तो कवर कला पूर्व पिले माने से कहछथि माने काहे पोएट आले माने miles to go before I sleep. Okay, it I sleep. It is पिले माने लाइक so that I can't make you understand. Miles to go before I sleep. एटा पिले माने बहुत ही इंपोर्टेंट सेंटेंस होते एंड क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम वी गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू लाइन्स जनरली। माइल्स टू गो पिले माने माइल्स कहले इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस रो गोटे यूनिट जेते मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर एग्जैक्टली माइल्स। ओके, माइल्स इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो एटा हम पूरा प्रॉपर फिजिक्स जेबानी फॉर अस माइल्स इज अ डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कवर करियर अछि टू गो जिबार अछि मते बिफोर आई स्लीप। बिफोर तो मतलब पूर्व एटी आई स्लीप कहले आई माने निजे रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इट स्लीप कहले मेरे माने निश्चित करे सोइबा नै। इट स्लीप कहले लिविंग द वर्ल्ड दुनिया छाडी के जिबावा बिफोर डेथ। एटी बिफोर आई स्लीप कहले बिफोर डेथ रो कथा बट बिफोर लिविंग दिस एंटायर वर्ल्ड। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप से काहे केमती कहछन पिले माने कि मते मो जीवन रे एते विशेष अछि, एते ड्रीम्स अछि, एते एम्बिशंस अछि। एम्बिशन कहले माने लक्ष्य, एते गोल्स अछि, गोल कहले बाकी लक्ष्य। तो मो जीवन रे जहा लक्ष्य अछि मो ए पृथ्वी छाडिला पूर्व ए दुनिया छाडिला पूर्व ताको मते फुलफिल करिवार अछि। ट्राई टू अंडरस्टैंड पिले माने माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप कहले मते जीवन रे बहुत सारा रास्ता कवर करिवार अछि। मोर लाइफ रे मोर जहा एम्बिशन अछि, जहा विशेष अछि, जहा स्वप्न अछि, जहा ड्रीम्स अछि मते ताको फुलफिल करिवार अछि। कहा पूर्व पिले माने बिफोर आई स्लीप बट बिफोर आई लीव द एंटायर वर्ल्ड और बिफोर आई डाई और बिफोर आई लीव द एंटायर वर्ल्ड बिफोर आई डाई। तो मोला पूर्व ए दुनिया छाडी गला पूर्व मते मो जीवन रे बहुत सारा रास्ता कवर करिवार अछि। So this is the distance that the poet is talking about. It is the distance of the life he is going to cover, and which means that he is going to fulfill all his dreams, he is going to fulfill all his ambitions, his wishes before he leaves the entire world. Okay? So try to understand पिले माने सेठी ताको हॉर्स कहछि कि बहुत सारा रास्ता कवर करियार अछि, आगु घरे पहुंचबार अछि, राइट। हॉर्स ताको सेही कथा कहछि माने इवनिंग ही अछि, बट पोएट कोन कहछथि अरे तम पेट हॉर्स को कोन कहछथि तू कहछु रास्ता कवर करिया पे जो रास्ता हम देखुछथि ए जो रूट ए जो रास्ता पड़छि घर को जिबा पे। बट पोएट कहछथि मु तो जीवन रास्ता विषय भाबुछि केते लंबा डिस्टेंस होते कवर करियार अछि, केते मोर स्वप्न अछि, केते मोर एम्बिशन अछि, मोर केते लक्ष्य अछि मो जीवन रे सब तक फुलफिल करेबी। कहा पूर्व पिले माने बिफोर द डेथ, बिफोर ही leaves the entire world, he is trying to fulfill all his dreams, to fulfill all his wishes. Okay, so this was all about a basic summary, you can say, an introduction to your poem, you can say. So hopefully पिले माने chapter को बहुत interesting लगेगा। In the next class we will be going through this poem stanza wise, particularly गोटे गोटे stanza पिले माने